Hi dear students. Let's see this question that came in KVPY 2018 part 1 physics paper. A fairly simple question based on toppling. Almost हर बच्चे ने ये जेई प्रिपरेशन में किया ही होता है. Every decent teacher would have taught this in their classes. बहुत ही simple question है. इस type के questions definitely सब बच्चे करते ही. So let's see what's happening over here. There's a plank which is accelerating at the value g by 10. तो जो a का value है that is given as g by 10. There's a block which is kept at relative rest with respect to Planck. तो block जो है Planck के respect में rest पे है and block का center of mass की location 0, L by 2 दी गई है. That means this point center of mass of the block is at the location 0, L by 2. Correct? तो अगर ये 0, L by 2 पे है that means this point is origin. ठीक है, L is the length of the cubical block. ये cubical block है जिसकी side length L है, तो that means इस point को origin माना गया होगा. ठीक है, because this distance is L by 2. ठीक है. Now we have to find the coordinates at which normal reaction from the Planck will act on the block. तो normal reaction block पे Planck से मतलब from the Planck on the block normal reaction जो लग रहा है, ठीक है, वो किस point पे लगेगा, that is what we have to find. ठीक है, अब इस point इसको थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से सोचते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये वो ब्लॉक है. ठीक है, ये वो ब्लॉक है, सेंटर ऑफ मास है एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन. ठीक है, एंड दिस इज द Planck. पहले तो अपन सोचते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन व्हाई विल इट शिफ्ट. ठीक है, यहाँ पे दो तीन चीजें सोचने की. नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट क्यों होगा. ठीक है, सेकेंडली किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. ठीक है, लेफ्ट या राइट. फिर कितना शिफ्ट होगा. ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. अब फर्स्ट यू टेल मी कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है दैट इज आल्सो g by 10. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल इन्वेस्टिगेट व्हाई शुड नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट. ठीक है, नाउ ब्लॉक का एक्सेलरेशन इज आल्सो g by 10. If you look at the block in isolation, अगर मैं ब्लॉक को आइसोलेशन में देखूं, so this g by 10 can only be because of the friction between this plank and the block. ठीक है, ये plank है. ठीक है, that means friction is acting on the block in the forward direction. ठीक है, friction जो block पे है वो forward direction में ही लग रहा होगा because block का acceleration forward direction में है and only this friction could have provided this acceleration. तो एक चीज समझ में आती है कि फ्रिक्शन जो है ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, नाउ इफ आई अज्यूम दैट नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट नहीं हो रहा है, सेंटर से ही जा रहा है. ठीक है, सो इन दैट इन सच अ सिनेरियो नॉर्मल एंड mg विल पास थ्रू सेंटर ऑफ मास. mg तो वी ऑलरेडी नो सेंटर ऑफ मास से पास होता है. mg passes थ्रू सेंटर ऑफ मास, नॉर्मल passes थ्रू सेंटर ऑफ मास. इन दोनों का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो हो जाएगा. करेक्ट, बट फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो नहीं होगा. ठीक है, फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो नहीं होगा. फ्रिक्शन टॉर्क अगर जीरो नहीं है देन एनी पर्सन स्टैंडिंग ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, would have observed the rotation or at least change in the angular momentum. ठीक है, would have seen the net torque. तो इसका रोटेशन दिखना चाहिए था. ठीक है, बट दिस पर्सन इज नॉट ऑब्जर्विंग एनी चेंज एनी ओमेगा. इस पर्सन के लिए ब्लॉक सीधा जा रहा है. स्यूडो फोर्स के अगर कोई कहता है कि ये ब्लॉक ये मैन जो है एक सेंटर ऑफ मास पे खड़ा है और सेंटर ऑफ मास एक्सिलरेटेड पॉइंट है, तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क भी आना चाहिए. That is right, but pseudo force का टॉर्क जीरो होता है because we know that pseudo force always passes through center of mass. तो pseudo force तो ऐसे ही पास हो रहा होगा and hence we can say that कि pseudo force का टॉर्क जीरो ही आएगा. So effectively center of mass के about real forces में से friction, normal और mg तीन forces हैं. Normal mg का टॉर्क जीरो हो जाएगा तो friction का टॉर्क आने की वजह से block should have rotated, but as it is given in the question कि there is no rotation and block is at relative rest with respect to Planck, therefore we can say that कि कुछ तो चेंज हुआ है. अब mg तो चेंज हो नहीं सकता, mg will always pass through center of mass, hence we can say that normal reaction अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर लेता है. ठीक है, अब क्योंकि एक्चुअली ब्लॉक को रोटेट टॉपल होने से रोकने के लिए नॉर्मल रिएक्शन अपनी डायरेक्शन शिफ्ट कर लेता है. ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें मतलब बहुत जैसे बहुत जगह ऐसा होता है. ठीक है, जैसे तुम चलती ट्रेन में से उतरो. ठीक है, चलती ट्रेन में से उतरो, सपोज ये ट्रेन है. ठीक है, ट्रेन ऐसे जा रही थी, अब तुम यहाँ से उतरो प्लेटफॉर्म पे, तो तुम अपना मतलब इंट्यूटिवली तुम अपना एक पैर आगे कर बढ़ा लेते हो. ठीक है, टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम टॉपलिंग. बिकॉज अगर तुम पैर अपना एक जगह पे फिक्स रखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन वहीं से ही पास हो सकेगा, मतलब तुम्हारे पैर से ही पास हो पाएगा. ठीक है, फुट से, तो उससे टॉपल हो जाए. मतलब इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम है ट्रेन से जब तुम उतर रहे हो तो तुम्हारा ट्रेन के मूवमेंट की वजह से तुम्हारा एक एंगुलर मोमेंटम रहता है. ठीक है, तो उस एंगुलर मोमेंटम की वजह से यू हैव ए टेंडेंसी टू टॉपल. बट जैसे तुम अपना पैर आगे बढ़ा के दूसरी मतलब जैसे तुम अपना पैर यहाँ से करके तुमने यहाँ पे रख लिया, तो अब क्या होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन जैसे तुम ट्रेन ऐसे जा रही थी तो बंदे की टॉपलिंग टेंडेंसी ऐसी थी. ठीक है, मैन वुड हैव ट्राइड टू टॉपल इन दिस डायरेक्शन, मैन वुड हैव टॉपल्ड इन दिस डायरेक्शन.
तो नॉर्मल रिएक्शन आगे, जब हमने पैर आगे किया तो नॉर्मल रिएक्शन आगे से पास होने लग जाता है और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलता नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से जा रहा है तो तुम देख सकते हो कि इस फ्रिक्शन की वजह से इसका टॉर्क ऐसा आ रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस सिनेरियो में नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो दैट नॉर्मल रिएक्शन एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। ठीक है, सॉरी, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दे टू बैलेंस आउट द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, टू बैलेंस आउट द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। Hence, we can say that normal reaction will shift towards the left to balance the torque of friction. ठीक है, it wants to prevent the toppling. अब let us say this distance is x. Let us say this distance is x by which the normal reaction has shifted. So since the net torque of friction and the net torque of normal reaction should be equal in magnitudes, okay, we already know that they are opposite in direction. So we can just write normal reaction into x. So this is nx, n into x. That should be equals to torque of friction, which is friction into L by 2. Friction into L by 2. This is distance L by 2. ठीक है. Now normal is of course equals to mg in this scenario. ठीक है, normal की वैल्यू mg के इक्वल होगी because ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं. ठीक है, mg into x that should be equals to friction. फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मास into एक्सेलरेशन, m into g by 10. क्योंकि as I told you in the starting की जो एक्सेलरेशन g by 10 है that has happened only because of friction. m into g by 10 into L by 2. So from here you can see that mg is cancelled. X becomes L by 20. X की वैल्यू L by 20 आ गई. तो अगर x की वैल्यू L by 20 आ गई, so can we say that कि नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास होगा, माइनस L by 20 से, बिकॉज लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है. तो इफ यू गो बैक टू दी ऑप्शंस, माइनस L by 20 कॉमा 0, ठीक है, यहाँ से कहीं से पास हो रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन ये. So this point is minus L by 20 comma 0. I hope you would have understood this. But ये सिंपल ही क्वेश्चन था, not very difficult. That's it. Thank you.